कोई सर्दी नहीं गी। असी ना सर्दी तो डरना जे ते ना डरन वाले लोग आ, छाती ताड़ के खड़े आ। बेशक मोदी ने गोलियां भी चलाउणियां चला दे, जां तां साडे काले कानून रद्द कर ले ते वापस ला ले ते जावांगे, नहीं ते नहीं जाना, डटे तो डटे रहांगे। ये मोदी ना मंगा मन्निया, हो सकदा ही सारे सलाह कर रहे हैं। असी सारियां जानियां ने जाके इहदी कोठी ते घराव करना, पत्थ के जानियां दी कोठी ते, ये बेफिक्र रवे। गल सुनो मेरी, जे साडे किसान सड़कां ते मर रहे आ ते मावां कैसा करनगियां, बच्चे क्या करनगे घरां में? जदों साडी जमीन ना रही, साडे खेत ना रहे, घर जाके की करांगे? घर ते साडा वेचण वास्ते, जमीनां साडीਆਂ वेचण वास्ते, सारा कुछ गहणे करन वास्ते ਇਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਗਾ ਕੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਆ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਆਂਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੱਤਵਾਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੱਕ। बारिश हो रही है, बारिश में पानी ऊपर से आता है, हम सब जानते हैं, यानी कि आसमान से आता है। और यहाँ पे जहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं, टेंट लगाए हुए हैं, जिस टेंट के अंदर हूँ मैं, वहाँ पे आपको दिखाया है ऑलरेडी कि किस तरह से पानी ज़मीन पे भी आ गया है। तो यानी कि जो सिचुएशन है, जो आंदोलनकारी हैं, इनके लिए दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। अभी तक तो सिर्फ ठंड थी, लेकिन अब साथ साथ पानी भी आ गया। आपकी बहन जी बताइए कि जिस तरह से पानी आ गया, तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਰਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ, ਇਹ ਵਰਖਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਦਾ तो ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ खतरा नहीं। जैसे आप कहते हो 3 काले कानून लागू किए और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, तो क्या खतरा है उसमें, थोड़ा सा बताएंगे आप? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਤਰੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 8 ਰੁਪਏ ਮੱਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਮੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਮਿਲਦਾ। 1 ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 रुपये की मक्की। बहन जी, अब जैसे अगर हम मॉल की बात करते हैं, तो मॉल बनाने में उसमें मान लीजिए जो बंदा रेहड़ी लगाता है, काउंटर लगाता है, उसके जो किराया देता है, उसके भी तो खर्चे हैं। ना ना ना, ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਣ, ਸਾਡੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 22 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਣ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਖੇਤ, ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਚੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆ, 6 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी कि वो आपका ये आरोप है कि मोदी जी जिस तरह से बिहार के लोग आके आप लोगों के यहाँ पे दिहाड़ियाँ करते हैं, मजदूरी करते हैं, और इस कानून के थ्रू जो है ना आप लोगों की भी यही स्थिति हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपने कही कि हेलीकॉप्टर और जहाज बेच डाले, वो कौन से बेच डाले? ये मोदी ने बेचे जी। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਇਹਨੇ? हेलीकॉप्टर जहाज तो नहीं बेचे, तो खरीदा 8,500 करोड़ का जहाज खरीदा है। ਰੇਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਇਹਨੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਕਰਤਾ, ਵੇਚਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 500 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨੇ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੁਪਈਏ ਕੋ 2 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਦਾਦ
10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰਤੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ नहीं। मैं सेहत महकमे में भी काम करती हूँ, किसानों की भैन भी है, किसानों की धी भी है, किसानों की माँ भी है। बहन जी एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि सरकारी अस्पतालों का आपने रेफरेंस दिया, उसका एक उदाहरण दिया कि भाई वहाँ पे 5 रुपए की जगह जहाँ पे पर्ची लगती थी अब वो प्राइवेट स्कूलों में अस्पतालों में जो है ना जच्चा बच्चा की डिलीवरी 40,000 में कराती। तो इसमें मोदी कहाँ से दोषी है? इसमें तो सारे मिली भुगते आ जो पंजाब दी सरकार वो भी दे चाचे भतीजे आ, वो किते वखरे थोड़ी आ गया है। पुछना तो इन्हें सरकार ने ना भी जो पंजाब दे विच काम हो रहा वो ये सारे बंदे कर रहे हैं, ये सारे पुत पोतरे ये ही सारे रंडे रले हुए आ। किहड़ा पंजाब दा कैप्टन सरकार साडी की सुन रहा? झूठियां सौहां गा के गुड़के साहब दिते सारे सारे भोले भाले लोगों तो उन्हें वोटां ले लियां। आ बादल सरकार की कर रही है? उन्हें भी सानू सारियां नू गुमराह करके किहड़ा काम नहीं साडे कोल कीता। साडे सारे किसान वीर अज कर्जियां दी मार थल्ले आए पे आ, आंदे कर्जा माफ कर दें। कोई कर्जा माफ कीता ना सरकारां ने? कोई साडे बच्चों को कोई नौकरी दी हैगी इन्हां सरकारां ने? साडे नाल की नहीं कीता? ये सारा गुंडागर्दी जो पंजाब दे जो सेंटर सरकार आ, जो सूबा सरकार आ, पंजाब दी सरकारां सेंटर सरकार मिली भुगता सारा कुछ रल मिल के कर रहे हैं। साडे नाल बहुत कुछ हो रहा है, सारे लोग मिलके कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो अकाली की सरकार थी, चाहे ये मोदी की सरकार है। ये सब लोग वहाँ के नागरिकों के सभी मिली भगत है, परेशान कर रहे हैं। एक चीज़ आपने और कही कि जो ये सरकार है यानी कि अभी जो करंट सरकार है मोदी सरकार की, अगर आप बात करते हैं आप इनसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनकी सारी ज़मीनें किसानों की बिक गई, ज़मीनें कर्जे में हैं सारे किसान, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया में भी खूब लोग चिल्ला रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं, मंत्री भी कह देते हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं वो भी कह देते हैं कि किसान जो है अंग्रेजी बोल रहा है, किसान बड़ी गाड़ियों में आया हुआ है, किसान जीन्स पहन रहा है, किसान पिज़्ज़ा खा रहा है, किसान बादाम काजू खा रहा है। वेखो जी एक मिनट आ जाते तुहाडे वाली ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਪੀਜੇ, ਕੋਈ ਪੀਜੇ ਪਾਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ BA MA ਡਿਗਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ? ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ? ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੜ ਕੇ ਪੇਜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ? 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲਣ ਨੂੰ। ਸਰਦੀ ਬੁਖਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਸਰਦੀ ਹੋ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਛਾਤੀ ਤਾੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਡਟੇ ਤਾਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। डटे हैं तो डटे रहेंगे। लेकिन आप एक चीज़ और बताइए कि आज 39वां दिन है और तकरीबन 47 से 48 लोगों की मृत्यु हो गई इस आंदोलन में। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्यों मोदी दी वजह हो गया? ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ BP ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ मोदी ने किया। तो जैसे अभी जो पीछे मीटिंग हुई थी उसमें जो मंत्रियों ने कहा कि भाई जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो है घर जाने के लिए कहा जाए। गल सुनो मेरी, जे साडे किसान सड़कों ते मर रहे आ ते मावां कैसा करनगियां? बच्चे क्या करनगे घरां में? जदों साडी जमीन ना रही, साडे खेत ना रहे, घर जाके की करांगे? घर ते साडा वेचण वास्ते, जमीनां साडीਆਂ वेचण वास्ते, सारा कुछ गहने करन वास्ते ਇਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁੱਖੇ ਅਮਲੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। कैप्टन उन्होंने दोबारा साइन किए, किन्ने नहीं इतने साइन किए। सारा कुछ ही मिली भुगत होया वा। बाकी तुसीं आंदे ना ये गल नहीं। बाकी असीं जे साडे भरा इन्हां नाल खड़े ही नाल सारियां भैणां पंजाब दीयां हद्दां तो वध 50,000 दा जथा 20 तरीक नूं आ रिहा। असीं सारियां जाणियां जे ये मोदी ना मंगा मन्निया हो सकदा असीं सारे सलाह कर रहे हां। असीं सारियां जाणियां ने जाके इहदी कोठी दे उत्ते घराव करना, पत्थ के जाणियां दी कोठी ते। ये बेफिकर रवे, कदों कितना नहीं ये करदा साडे नाल राबता कायम करदा, साडे कानून रद्द नहीं करदा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚੱਲਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਡਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ।
ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਤੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਲੋ ਪੋਪੇ, ਕਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਣ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਜਵਾ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ? जी, जैसे ये कहते हैं कि अभी मोदी जी ने पीछे जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि बीमा अब जो फसल अगर किसी की खराब हो जाती है तो उसको बीमे के द्वारा उसकी भुगतान हो जाता है। ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਰਾਤ 11 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਸੱਪ ਮਿੱਧੇ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ कोई साड़ी सुनाई नहीं की। बीमा नहीं मिलता है किसी भी तरह का। और ये पहले भी मैंने यहाँ पे बताया, जो हरियाणा के किसान भी मिले उन्होंने भी यही आरोप लगाया है। लेकिन मोदी जी कह देते हैं कि नहीं, सबको बीमा मिल रहा है। वो किसान कहते हैं कई बार 1 रुपए का मुआवजा मिलता है। आज मुझे बताइए, जैसे भी सिचुएशन इस तरह की बन गई, बारिश हुई, अभी तक तो ठंड हो रही थी, हमें लग रहा था कि ठंड में कैसे रातें कटेंगी, कैसे आंदोलन एक पार होगा। लेकिन अब ये बारिश भी आ गई है, ऊपर से भी पानी है, नीचे से भी पानी है, तो ऐसी स्थिति में कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਪੂਰੇ ਬੁਲੰਦ ਵਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। तो अभी जैसे उन्होंने जो मीटिंग हुई थी पीछे 30 तारीख वाली, उसमें 4 मांगों में से 2 मांगे तो मान ली हैं। पराली की मांग मान ली है, बत्ती की मांग मान ली है, वो तो मंजूर ही नहीं अजे हुई, वो कुछ भी नहीं होया। आप ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀਰਾ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਬੱਤੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमारे पास जमीन नहीं रहेगा तो हम वो पराली को बत्ती को क्या करेंगे? वो तो ये कह रहे हैं भाई 4 मांगे आपने रखी थी, 2 हमने मांग ली, 2 आप मान जाइए। तो हम मानते हैं, जो मान लिया हमको वो दे दे, ते रहने दे। वो ऊपर वाली 2 दे दे और 2 ये वाली रहने दें। जी, आप आगे आइए। हमारा वो जो पहले वाली 3 मांगे हैं हमारी, पहले जो 3 कानून उसने पास किए हैं वो तीनों रद्द कर दे, ये रहने दे हमें मुझे, ठीक है ना। अगर जमीन हमारे पास रहेगी तो तभी हमें बिजली चाहिए, तभी तो धुआं आएगा। जब जमीन ही नहीं रही, हम बिजली को क्या करना, धुआं क्या करना, कहाँ आग लगानी है? जी, तो कह ये रहे हैं कि जो 4 मांगों में से है, अगर ऐसी बात है 2 हमें माननी है, 2 सरकार ने माननी है, तो 2 पहली वाली जो मांगे वो मान लेते हैं, ये वाली मांगे हम छोड़ देते हैं, ऐसा इनका। आप कुछ और कह रही थी। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨੀਬਾਗ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੈਠੀ, ਆ ਵੀ ਆਈ ਆਹ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ जी, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। आप भी पहले दिल्ली में शाहीन बाग में आप बैठे थे, तो आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? आपकी अगर जमीन नहीं है, किस है जमीन, तो फिर जब जमीन नहीं है तो फिर यहाँ के क्यों? साथ क्यों आप रोटी नहीं खाते? मैं खाता हूँ। रोटी कौन देता है? अन्नदाता देते हैं। अगर हमारे किसान भाई नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे। हम शहरों में रहते हैं, किसान वहाँ से लाद के ट्रक में यहाँ दिल्ली पास करते हैं, सभी यूपी में पंजाब से आता है। हमारे हिंदुस्तान में क्यों, ऑल वर्ल्ड में हिंदुस्तान से जाते हैं सारा बासमती चावल, गेहूँ, चीनी अरब कंट्री में जाता है, कनाडा में जाता है, अमेरिका में जाता है। हमारे चाय पत्ती तक लंदन अपने ठप्पा लगा के बेच रहा है। चाय पत्ती उगता है लंदन में, कहाँ से जाते हैं? तो फिर हम किसानों के साथ नहीं देंगे। तो हमारा जमीन है, हमारे ये मातृभूमि को वो बेचना चाह रहा है। लाल किला बेचा, ट्रेन स्टेशन बेचे, कंपनियां बेच दिया, सब गिरवी रख दिया। अब हमें गिरवी रखेंगे? आज हमारे जमीन हड़प करेंगे, कल हमारे घर भी हड़प करेंगे। हाँ, आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मैं करती भी हूँ फिर भी मैं वो काम छोड़ के मैं यहाँ पे शामिल हुई हूँ, क्योंकि हमें जमीन गिरवी नहीं रखनी, हमें अपने किसान भाई को गुलाम नहीं बनने। हमने आज़ादी किस लिए किया? सन 47 में हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया। आज मोदी सरकार सब चीज़ गिरवी रख रहे, क्यों? आप जो बात कर रहे हैं कि आप जैसे शाहीन बाग में भी थे, यहाँ भी थे, और आप कहते एक से मेरा प्रश्न, आपने कहा कि आप कुछ करते भी नहीं है, तो मेरा ये कहना था किस तरह के आंदोलन में आप शामिल होती हैं? कौन कौन से आंदोलनों में अब तक आपने भाग लिया है? शाहीन बाग में और इसमें
पहले बच्चों के लिए भी किया था, सरकार से अप्लाई किया था कि बच्चों को भी कुछ मिले। उन्होंने कहा हम हेल्प करेंगे। जब भी मोदी सरकार थे, किस तरह की बच्चों के लिए मांग कर? भूखमरी, जो भूखमरी फैली हुई है, बच्चों को खाना वो कहाँ पे किया था आपने? वो जंतर मंतर में, फिर उसके बाद शाहीन बाग में CAMP, जो वो भी एक जरूरी चीज, जो नागरिकता हमारा हक छिन रहा है। किसके पास जन्म पत्री है? हैं? सब बारिश में बह जाता है, आग लग सब हो जाता है, कहाँ से लाएंगे जन्म पत्री? माँ को इंडियन इनकार कर रहे, बच्चों को अधिकार दे। जिसने पैदा किया उसको ही बोल रहा है वो इंडियन नहीं है। कहाँ की है ये मतलब? ਬਾਤ ਹੋਰ ਕਰੇਗੀ जी ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਆ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੋ ਚਮਚੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਖੜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਨਾਲ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਰਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਫਸਲ ਮੱਕੀ ਮਿਰਚ ਸੌਂਫ ਜਵੈਣ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਸਲ ਅਦਕਰ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਲੂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਆ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ 15 ਰੁਪਏ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਚ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਕਟਾਂ ਚ ਲੱਸੀ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੱਸੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਖੱਟੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਲੈਣਾ ਸਿਆੜਾਂ ਦਾ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਖੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ सारी की सारी जानकारी है, मतलब ये नहीं मैं 1 सेकंड आया आपके पास में, सारी की सारी जानकारी है। आप कहते हैं टिप्स पे है, आप जो मर्जी जानकारी लेना चाहते हैं किसानों के बारे में ले लीजिए। किसानों के ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि जो शिक्षक हैं वो भी आए हुए हैं इस आंदोलन में, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसानों के समर्थन में, किसानों के सपोर्ट में। बहन जी 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 आप कहाँ से आए हुए हैं? ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੇ तरनतारन से। आपकी भी जमीन है, आपकी भी किसानी करते हैं आप लोग या सिर्फ समर्थन में आए? ਜ਼ਮੀਨ है जमीन है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ये मानेगी बिल जो आप रद्द कराने की मांग करना चाहते हैं, बिल वापस लेगी? मानेगी मानना पड़ेगा उन्हें मानना पड़ेगा। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने अभी कहा था कि जमीनों के ऊपर बीमा होता है। ये जो 3 लाख किसान भाइयों ने आत्महत्या किया है, जो गरीब लोग हैं, से 3 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। क्यों सब जगह गरीब लोग का आत्महत्या किया? बिहार में, यूपी में, एक सेकंड डेटा पे जब बात करें कितने समय में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कई सालों से हो रहा है। नहीं, मतलब ये कैसे जो आप 3 लाख कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा सब मिला के कितने सालों के? हाँ तो कितने ठीक। सालों से हो रहा है। अच्छा एक मेरा प्रश्न, बैंक लोन लेते हैं, बैंक लोन वादा नहीं ਇੱਕ कर ਮਿੰਟ पाते। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਾਹ ਲੈ ਲੈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਤੋਂ 200 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ जी जी सरकारों से एक चीज़ मुझे आप और बताइए, जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट का मुद्दा उठता है और जब यहाँ पे आप लोग भी आए तो काफ़ी मीडिया में चला कि जो शाहीन बाग में जो महिलाएं थीं वो 500-500 रुपए में वहाँ पे धरने पे बैठी थी, फिर यहाँ पे आया तब भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? बोलने दो कुछ भी। जब कोई कुछ करने को चाहता है उसे बदनाम किया जाता है। जो सेम टू सेम हो रहा है, वहाँ पे 500, यहाँ पे 100 रुपए। यहाँ पे वो एक्टर्स ने कह दिया कि दादियाँ 100 रुपए में आ रही हैं। हाँ, यहाँ वहाँ पे भी पाकिस्तानी कहा जा रहा था आतंकवादी, यहाँ पे भी वो सेम टू। वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में केस डाला मोदी जी ने, यहाँ का भी वो सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है। सेम टू हो रहा है क्योंकि दोनों चीज एक। तो आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे? पैसे कहाँ से मिल रहा है? आपने दिया है मुझे? इन्होंने दिया है? किसने दिया है? नहीं मैं तो खैर दे ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ क्योंकि इतना आवाज़ उठाई जा रही है। चला कौन दे रहा है पैसे? हमें तो नहीं मिला। जी यहाँ पे जब हम बात ये कर रहे हैं, जब भी बहन जी कह रही थी और इन्होंने भी कहा कि किसानों की आत्महत्या की, किसानों की आत्महत्या तकरीबन हर साल 11 से 12 हज़ार के बीच में किसान पूरे देश भर में आत्महत्या कर रहे हैं और सिर्फ इसी वजह से आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसके फसल के दाम उसको मनचाहे या उतने भी नहीं मिल पाते हैं जिसमें वो अपनी दोबारा फसल उगा सके। इसका ताज़ा उदाहरण अगर आप देखें, अभी बिहार में एक व्यक्ति ने अपने गोभी के खेत में
पूरी की पूरी गोभी जो है ना नष्ट कर दी, उस पर ट्रैक्टर चला दिया। क्यों? क्योंकि गोभी उसको जो दाम मिल रहा था 1 रुपए किलो से भी कम का मिल रहा था। उसे लगा कि इतना तो मेरा वहाँ मंडी तक ले जाने में ही खर्च हो जाएगा। उसने गुस्से के मारे उस ट्रैक्टर से अपना पूरा का पूरा जो गोभी थी नष्ट कर दी। सोचिए ऐसी स्थिति में वो किसान क्या करेगा जिसने 2 महीने 3 महीने में उस गोभी को उगाया, हल जोता, मेहनत करी, बीज डाला, फसल उगाई, पानी डाला, सब कुछ किया, उसके बाद उसको फसल को भी नष्ट करने के लिए डीजल लगा के ट्रैक्टर चलाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जब पैसा नहीं आएगा तो अगली फसल वो कहाँ से और कैसे बोएगा? यहाँ पे अगर सरकारें कब चेतेंगी, ये बार बार मैं प्रश्न उठाता रहता हूँ। आज तक ये हालात हो गए हैं हमारे देश में कि डेटा जो आया करता था, रिपोर्ट्स आ जाती थी, उनके ऊपर भी कंट्रोल लगा दिया गया है कि डेटा बाहर ना निकलने पाए। कितने किसान अब आत्महत्या कर रहे हैं। अगर हम 2020 की बात करें, ये शायद डेटा हमारे पास कब आएगा या आएगा भी या नहीं आएगा कुछ भी नहीं पता। 2019 का भी हमारे पास नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर सब जगह सरकार सेंसर ही लगा देगी, हर जगह सबकी आवाज़ दबाने की ही कोशिश करेगी, हर उस व्यक्ति को जो प्रश्न पूछेगा सरकार से उसको अगर उग्रवादी, अर्बन नक्सलाइट, टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, इस तरह की चीज़ें अगर कही जाएंगी तो क्या सरकार से जनता को सवाल पूछने का हक नहीं है? अगर मैं यहाँ पे पीड़ित हूँ, मैं यहाँ पे परेशान हूँ, तो मैं सवाल किससे पूछूंगा? करंट गवर्नमेंट से पूछूंगा या मैं विपक्ष से पूछने लग जाऊंगा जो आज का नेशनल मीडिया कर रहा है? कहीं भी कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, सीधे विपक्ष के ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं। कारण यह है कि सरकार क्या मीडिया को कंट्रोल कर रही है? अगर मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रही है तो मीडिया सिर्फ और सिर्फ सरकार के जो कारण बताए जाते हैं ना कि उनकी सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रही है, उनकी प्रमोशंस की बात करती है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछती हैं? यही सवाल मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं और जनता से निवेदन है कि आप अगर इस आंदोलन को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बार बार हर वीडियो में बात कहता हूं कि कृपया करके चाहे आप टिकरी बॉर्डर जाएं, चाहे आप सिंघू बॉर्डर जाएं,